Dear students, in this third lecture of semiconductors, we are going to study the variation of conductivity with temperature and electron concentration in the conduction band. Variation of conductivity with temperature. Assuming mobilities to be independent of temperature, the temperature dependency of conductivity arises because of the variation of intrinsic carrier concentration Ni with temperature. It will be proved that Ni is given by Ni is equal to 2 into 2 pi kt by h cube, 2 pi kt power raised to 3 by 2 over h cube is equal to mn steric mp steric power 3 by 4 exponent of minus eg by 2 kt. याद रखें कि विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कंडक्शन बैंड में इंक्रीज़ होगी, जबकि जो होल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो वो होल्स में इंक्रीज़ होगी और जिससे क्या है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है दोनों एज अ कैरियर जो है करंट कैरियर जो है वो कंडक्शन को बढ़ाते हैं. तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में एम एन स्टेरिक एंड एम पी स्टेरिक रिप्रेजेंट द इफेक्टिव मैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ होल रेस्पेक्टिवली. E g is the band gap, K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. अब Mn is the effective mass of the electron and Mp is the effective mass of the holes. Actually, electrons are mobile. They are energetic. When they are in the conduction band, they are randomly moving, and in the effect of electric field, they can move easily along the under the effect of the electric field. That's why the effective mass of the electron is relatively less than the actual mass of the electron, while the holes are in the valence bands, and the movement of the holes are not aggressive just like electrons. Therefore they feel some resistance in the flow of the holes in the valence bands. Therefore the effective mass of the holes is relatively high as compared to the actual mass of the holes. Since the sigma is equal to ENI into mu n plus mu p. Mu n is the mobility of the electrons, while the mu p is the mobility of the holes, and E is the charge of the electron and holes. Ni is the charge concentration here. Substituting Ni from equation 1 in equation 2, we can find the sigma is equal to sigma of np plus n mu n plus mu p into 2 pi kt raised to power 3 by 2 over h cube mn steric mp steric power 3 by 4 exponent of minus eg by 2 kt. Eg is the band gap between the valence and conduction band. If we take the log of this equation, third equation, we will get log of sigma is equal to minus eg by 2 kt 1 by t. Actually this term is already in expansion. That's why it's now e minus eg by 2 kt 1 by t plus 3 by 2 log of t plus constant. The first term on the right hand side is the dominant term. The plot of log sigma versus 1 by t is given in the fig as a straight line as shown in the fig. The slope of the line gives a estimate of the band gap of the semiconductor. ये फिगर जो हमारे पास है इसमें प्लॉट ऑफ द लॉग सिग्मा वर्सेस 1 बाई टी है. लॉग सिग्मा अलॉन्ग द वाई एक्सिस और अलॉन्ग एक्सिस 1 बाई टी है. तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है. तो इसकी स्लोप से हम लोग क्या है वो बैंड गैप जो है वो सेमीकंडक्टर का मालूम कर सकते हैं. Carrier concentration and Fermi level for the intrinsic semiconductors. The concentration of electrons and holes in the semiconductor can be obtained from the knowledge of the densities of available states in the valence band and the conduction band, as well as in the Fermi Dirac distribution function. The expression for the Fermi energy is then obtained from these carrier concentrations. Electron concentration in the conduction band. The number of free electrons per unit volume in an energy range E into and E plus dE can be written as. जैसे कि हम लोगों को पता है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में हम लोगों ने जो है ये रिलेशन फाइंड आउट किया था previously. Dn is equal to d of E f of E dE. dE change in energy from E to E plus dE, and the d of E is the density of the states defined as the total number of allowed electronic states per unit volume
in a semiconductor, and f of e is the Fermi distribution function representing the probability of occupation of a state with energy E. The expression for f of e is given by equation f of e is equal to 1 by exponent of E minus EF by KT plus 1. Equation number 2. Here EF actually the Fermi level. When the electrons are moving around the level, the topmost level at 0 Kelvin is actually representing the Fermi level, while during the conduction electrons are carry the energy more than the Fermi level energy, the Fermi energy. That's why E is relatively high as compared to Fermi energy EF, and this quantity is E minus EF is now positive, and KT is very small quantity. Therefore, exponent of E minus EF by KT is a very big quantity. Whereas as that for D of E, which is strictly valid for the free electrons, is obtained as density of E is equal to 4 pi by h cube 2m by power 3 by 2 e raised by 1 by 2. ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्या है फर्मी गैस पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मालूम किया हुआ रिलेशन, तो इसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं इन इक्वेशन 1 के अंदर, टी एन इज इक्वल टू 4 पाई बाई एच क्यूब 2m रेस्ट पावर 3 by 2 e raised power 3 1 by 2 f of e dE. This is the equation number 4. It is apparent from the fig that an electron occupying an energy state E in the conduction band in fact possesses the kinetic energy E minus EC. Therefore, in equation 3, E must be replaced by E minus EC. Thus, equation 4 becomes, अब ये हमारे पास क्या होगी, डी एन 4 पाई बाई एच क्यूब ई माइनस ई सी. अब ई की बजाय हमने ई माइनस ई सी लिख दिया, और 1 बाई एक्सपोनेंट ऑफ ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1 डी ई. इक्वेशन नंबर 5. डायग्राम में देखें तो एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है. जो वैलेंस बैंड के ऊपर एक लाइन है ई वी, ये एनर्जी जो है ई वी कहलाती है. इससे नीचे जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल कहलाएगी. जबकि जो ई जी के ऊपर एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हमने ई सी लिखा हुआ, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड. एंड एनर्जी जब इससे ज़्यादा होगी जो एनर्जी, उससे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. ई सी एनर्जी चाहिए बैलेंस बैंड से, जो ई जी अगर एनर्जी लेगा ई वी से ई सी तक जाने के लिए, इससे जो ज़्यादा एनर्जी इसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास होगी उससे वो क्या है, वो मूव करेगा, कंडक्ट करेगा. तो जो इस वक्त कंडक्शन के दौरान जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो एक्चुअली ई सी एनर्जी, तो उसको कंडक्शन लेवल तक आने के लिए ज़रूरत थी, तो ई सी को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ई माइनस ई सी, जो टोटल एनर्जी उसमें से, तो बाकी माना जो एनर्जी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो इक्वेशन 5 के अंदर क्या है, एम एन स्टैटिक इज द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड. द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 ई टू ई सी, ई इज इक्वल टू ई सी. ई सी से लेके आगे क्या है कि जो मैक्सिमम एनर्जी उसकी होगी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. फ्रॉम ई इज इक्वल टू ई सी से लेकर ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि ई सी से कंडक्शन बैंड में गया, उसके बाद वहाँ से आगे जो उसकी किनेटिक एनर्जी शुरू हुई, वहाँ से लेकर के जो उसकी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी दैट इज ई इक्वल टू इन्फिनिटी, वहाँ तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. तो n इज इक्वल टू 4 पाई बाई एच क्यूब 2 m n स्टैरिक पावर 3 by 2 इंटीग्रल ई सी टू इन्फिनिटी ई माइनस ई सी स्क्र डी ई ओवर आ गया एक्सपोनेंट ऑफ ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नियर रूम टेम्परेचर के टी इज इक्वल टू 0.026 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देयर फॉर एनर्जी इज ग्रेटर दैन ई सी वी हैव, जो ई सी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जीज होंगी उससे वो जो कंडक्ट कर रहा है 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ ई माइनस ई एफ बाई के टी. अब ई माइनस ई एफ जैसे मैंने पहले बताया कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और के टी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका आंसर क्या हुआ, एक बिग आंसर आएगा. और एक्सपोनेंट उसका लेंगे तो मज़ीद बड़ा हो जाएगा. अगर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है उसके साथ प्लस 1 ऐड करेंगे या ना करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई माइनस ई एफ बाई के टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ ई माइनस ई एफ बाई के टी. Therefore, n is equal to 4 pi by h cube 2 m n steric power 3 by 2 integral e c to infinity e minus e c की पावर 1 by 2 exponent of minus e minus e f by k t d. यहाँ हम क्या है कि जो हमने इसको इक्वलेंट लिया, अब 1 को इग्नोर किया और इसके बाद ऊपर जब ले गए तो पावर क्या है इसकी नेगेटिव होगी इसकी एक्सपोनेंट की. और 4 पाई बाई एच क्यूब हमारे पास क्या हुआ, दोबारा रिलेशन क्या हुआ, n इज इक्वल 4 पाई बाई एच क्यूब 2 m n स्टैरिक पावर 3 by 2 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस. अब यहाँ पर हम लोगों ने e माइनस ई एफ है, ये
ई एफ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल जो है वो सॉलिड स्टेट फॉर्म में तो नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कंडक्शन लेवल है, कंडक्शन एनर्जी है ई सी। तो हम अपनी तरफ से ई सी इस जो एक्सपोनेंट के अंदर है टर्म, इसमें नोमिनेटर में ई एफ माइनस ई सी एक प्लस करेंगे और ई सी एक माइनस करेंगे और इसके दो पीसेस बना लेंगे और एक को हम लोग क्या है टर्म से इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, जैसे कि हमने लिया हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ ई एफ माइनस ई सी बाई के टी। और जबकि इंटीग्रल ई सी टू इन्फिनिटी ई माइनस ई सी की बार 1/2 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई माइनस ई सी, और एक टर्म हम लोग अंदर रख लेंगे इसके के टी। तो हमने एक प्लस किया और माइनस किया और इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करके इसके दो पीसेस बना लिए इस टर्म के। तो अब हमने लेट किया कि ई माइनस ई सी बाई के टी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से डी ई क्या आएगा हमारे पास, के टी डी एक्स। और फॉर ई इज इक्वल टू ई सी, जब ई इज इक्वल टू ई सी होगा तो अगर एनर्जी ई सी के बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और इसमें हम लोग अगर पुट करते हैं यूज ई इज इक्वल टू ई सी तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। देयरफॉर एन इज इक्वल टू 4π/h³ 2mn स्टेरिक 3/2 एक्सपोनेंट ऑफ ई एफ माइनस ई सी बाई के टी। और इंटीग्रल जो अंदर हमारे पास हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है 0 टू इन्फिनिटी हो गया हमारे पास, एक्स की पावर 1/2 के टी की पावर 1/2 ई रेज़ पावर माइनस एक्स के टी डी एक्स। अब हम लोग जो है इसमें से अगले सिंप्लीफाई करते हैं तो 4π/h³ 2mn स्टार के टी पर 3/2 एक्सपोनेंट ऑफ ई एफ माइनस ए सी के बाई के टी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/2। अब के टी था और एक हाफ के टी था, तो हाफ उसके साथ कट गया हमारे पास और बचा के ई रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स। और जो के टी हाफ बचा था उसको हम लोग क्या बाहर कॉमन ले आए, जो कि इंटीग्रेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो गई है यहाँ पर। तो ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर 1/2 ई रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स एक्चुअली एक आइडेंटिटी है, और इसकी वैल्यू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर 1/2 ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है π/4 की पावर 1/2। तो इससे हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या मिलेगा, तो एन हमारे पास आ गया 2 × 2π एम एन स्टार के टी बाई एच स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। इक्वेशन 2 से हम लोग क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ लेवल ई सी कैन बी फाइंड आउट। एफ ऑफ ई सी हमने जो कि शुरू में लिया था 1/1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ ई सी माइनस ई एफ बाई के टी, और कहा था अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस, ऊपर ले जाकर नेगेटिव कर लिए थे माइनस ई सी बाई एफ बाई के टी। तो हम दोबारा से क्या है ये टर्म अगर हमारे 7 में नजर आए तो उसकी एफ ऑफ ई सी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 7 क्या बन गई, एन इज इक्वल टू एन ऑफ 2π एम एन स्टार के टी बाई एच स्क्वायर एज अ होल 3/2 एफ ऑफ ई सी। और स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हुआ, इसको हम लोगों ने एन सी एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई सी बाई एफ बाई के टी लिख दिया। तो ये यहाँ पर इससे क्या पता चला जी, हम लोग एन सी एक कांस्टेंट लेकर आए। फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कंडक्शन बैंड एज, denoting it by NC. We have where NC is equal to 2 × 2π mn square kt by h square पावर 3/2। और जबकि सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, NC is equal to 2.8 × 10⁻25 T/300 की पावर 3/2 पर m³ है। तो ये हमारे पास सिलिकॉन के लिए जो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द कंडक्शन बैंड जो है इतनी आती है। तो हम इस तरीके से जो है यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है इन कंडक्शन बैंड जो है वो निकाल सकते हैं।